ये रहा। Okay, so बच्चों Bismillahirrahmanirrahim. You can see this that the paper is of 1 hour and 15 minutes, right? आपने 1 hour and 15 minutes में ये पेपर कंप्लीट करना है। और दूसरा ये कि आप देख सकते हैं कि इस पेपर के अंदर मार्क्स कितने हैं आपके पास, 80 मार्क्स हैं, ठीक है ना? And there is no you can say that choice. You need to answer all the question. You need to answer all the question. अच्छा देखिए, आपके बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। यू कैन यूज अ ब्लैक और डार्क ब्लू पेन, आप यूज कर सकते हैं कोई सा भी पेन, ब्लू वाला या ब्लैक वाला, आपकी मर्जी है। और यू कैन यूज पेंसिल फॉर ड्राइंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये डायग्राम जो है या जो ग्राफ है ये हमें पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है, तो यू कैन यूज पेंसिल बेटे। आप ग्राफ बनाने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज कर सकते हैं। देयर इज नो इशू इन दिस, राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलिए चलते हैं पेपर की तरफ। Here it is, the question number 1 of this paper, बच्चों। They are saying that symbol of the element of period 3 of the periodic table are shown. This is whole period 3 we have. Answer of the following questions about these elements. Each symbol can be used once, more than once, and not at all. ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से। Now they are asking, form a stable ion with 2+ charge. बच्चों 2+ charge से कौन आयन बनाता है? Magnesium. Magnesium. Yes, कोई भी ग्रुप 2 वाला एलिमेंट बना सकता है। तो दिस इज ग्रुप 2, तो ये बना सकता है। क्या कैल्शियम होता तो भी बना सकता होता आपके पास, या बेरिलियम होता तो भी बना सकता होता आपके पास, स्ट्रोंशियम होता तो भी ये काम होता आपके पास। तो एनी ग्रुप 2 member can do this. Okay, second part is the least reactive in the period. Argon. Argon is the least reactive because it is the group 8 member and they are least reactive one. Very good. Is used in water treatment. Chlorine. Chlorine is used to kill bacteria in the treatment of the domestic water. Very good. Then form an oxide, which is the main impurity in iron ore. Silicon. Yes, silicon dioxide is the main impurity in the blast furnace process. Is an important component of the fertilizers, बच्चों। Phosphorus. Potassium. NPK होता है आपके पास। यहाँ पर पोटेशियम है ही नहीं और ना ही यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली फास्फोरस यहाँ पर आंसर। यस, इज स्टोर अंडर ऑयल्स बच्चों। Sodium. Any group 1 metal can be stored in oils. Very good. Is used as a food container, बच्चों। Aluminium. As it is you can say that corrosion resistant. Very good. Is found in the ore zinc blend. अच्छा देखिए, जिंक ब्लेंड आपके पास क्या होता है, ZnS होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सल्फर आंसर सल्फर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Let's move on towards question number 2. Now this is something very good. You can say that calcium hydroxide is slightly soluble in water. Calcium hydroxide can be made by the reaction of calcium with water. Write the equation for this reaction. So you can write the equation as calcium is reacting with water to produce what, bachcho? Calcium hydroxide along with hydrogen gas, right? And for the balancing, you can write 2 over here. All right, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Then name another substance that reacts with water to form calcium hydroxide. एक और क्या कौन सा substance पानी के साथ मिलकर calcium hydroxide बना सकता है? So it would be calcium oxide. Calcium dissolve हो जाएगा और calcium hydroxide बनाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट ये बहुत कम होगा, ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. When calcium hydroxide dissolve in water, it dissociate into ions and form a weakly alkaline solution. Suggest the pH of the aqueous calcium hydroxide. बच्चों weak है, देखें इतना कम ना लिखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतनी कम pH नहीं रखता। वैसे तो आपका 8 आंसर भी राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग होगा। एनी pH you can say that 7 से above होनी चाहिए और तकरीबन 12 से नीचे होनी चाहिए। तो कोई भी pH आप लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन मैं आपको वैसे आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो pH होती है वो नियरली 10 होती है। ठीक है, तो अगर आप ये लिखना चाहें तो इट वुड बी द करेक्ट वन, राइट?
Right, sir. And sir. give the formula of the ion responsible for the making a solution of OH minus. OH minus hydroxide ion. hydroxide ions are responsible one for the alkaline behavior, while acidic behavior के लिए hydrogen ions responsible होते हैं. Then lime water is a saturated solution of calcium hydroxide. Name the gas lime water is used to Carbon test. dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Yes. It is carbon dioxide. Very simple question. Then they are saying, suggest what is mean by the term saturated solution. A solution in which no more solute can dissolve at a given temperature. 2 marks का है तो आप क्या लिखेंगे? A solution. A solution. 1 mark तो इसका मिलेगा आपको definition का solution that can dissolve no more solute. जो कि further solute dissolve ना कर सकता हो. और दूसरा नंबर आपको मिलेगा at a given temperature. गिवन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपको गिवन है उसके ऊपर, क्योंकि आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से आपने ये टेम्परेचर की बात जरूर करनी है. देन डिस्क्राइब हाउ वुड यू मेक अ सैंपल ऑफ लाइम वाटर स्टार्टिंग विद अ सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर आपके पास सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो आप क्या कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आप यूज करेंगे ऐड एक्सेस सॉलिड calcium hydroxide into the water. To water and filter. ये हो गई आपके पास. उसके बाद क्या करेंगे आप? stir the mixture कर लें आप, stir the mixture. और उसके बाद आप क्या लिख लें? उसके बाद आप लिख लें filter the undissolved calcium hydroxide. Right बच्चों? Right, sir. Right, sir. बात वो आपसे पूछा, how would you test for the presence of calcium ion in a sample of lime water? Calcium ion को कैसे टेस्ट करोगे भाई? We know that calcium ion. Yes, you need to add aqueous sodium hydroxide, and we know that क्या बनेगा आपके पास? White precipitates. क्या बनेंगे आपके पास? White precipitates, which would be insoluble in excess. Which should be insoluble in excess. All right, बच्चों. Yes. Yes, sir. Then here we have D part, और D part में आपसे कह रहा है 25 centimeter cube sample of lime water is placed in a conical flask. The concentration of calcium hydroxide in lime water is determined by the titration with dilute hydrochloric acid. Name the item of apparatus used to measure the volume of acid in the titration. Burette. Yeah. You can see this. ये कह रहा है कि आपके पास 25 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल आप डाल रहे हैं लाइम वाटर का, तो इसका मतलब आपके पास जो दूसरी वाला आपके पास जो आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट होगा वो कहाँ होगा? ब्यूरेट के अंदर होगा. तो ये आपने याद रखना है कि it should be in burette, right? State the type of reaction which take place, बच्चों. This is acid-base reaction. That it is neutralization reaction, right? As well as lime water and dilute hydrochloric acid. State what other type of substance must be added to the indicator. Absolutely right. Very good बच्चों. अब देखें, जो बच्चा आपके पास IGCSE का है उसको ये बात याद रखनी है कि ये वाला सवाल जो अब मैं कराने लगा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट, लाजमी आता है. इसमें आपको याद रखना है कि ये वाला पार्ट 4 से 5 नंबर के लिए लाजमी आता है. तो इसको इसी पैटर्न में करना है जिस पैटर्न में मैंने आपको सिखाया है कि वही पैटर्न है. सबसे पहले आप मोल्स निकालते हो, फिर आप रिलेशन लगा के दूसरे के मोल्स निकालते हो, और फिर आप रिक्वायर्ड वेरिएबल निकालते हो. ठीक है ना? उसके बाद फिर आपसे वो जो करा रहा है आप कर सकते हैं एडिशनल, लेकिन ये 3 स्टेप तो ही होंगे. तो देख लेते हैं आप सबसे पहले क्या कह रहा है वो आपसे. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन. 20 centimeter cube 0.05 mole per decimeter cube HCl reacts with 25 centimeter cube of calcium hydroxide. Determine the concentration of calcium hydroxide in gram per decimeter cube. Use the following step. Calculate the number of moles of 20 centimeter of 0.05 mole per decimeter cube HCl. मैंने आपको वॉल्यूम भी बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब आप मोल्स निकाल सकते हैं. मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? मोल्स अगर कॉन्सेंट्रेशन तो आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइडेड बाय 1000.
तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है 0.05, वॉल्यूम आपके पास है 20/1000। तो जरा चेक करें बच्चों कितना आंसर आ रहा है आपके पास। 1 into 10 to the power of -3. 0.001 it means, right? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब ये हो गई एक चीज आपके पास। अब आपको कह रहा है determine the number of moles of calcium hydroxide। अब जरा ऊपर से देख के रिलेशन लगा लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमें मोल्स निकालने, HCl के हमारे पास गिवन है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 1:2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इट इज 1:2। और अभी जो हमने मोल्स निकाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास HCl के मोल्स हैं 0.001 और हमें निकालने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स। सो यू कैन सी दिस कि ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 0.0005 आंसर आना चाहिए। चेक कर लीजिए। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आपसे वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, तो आप कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है कॉन्सेंट्रेशन निकालना। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट देखिए जरा सबसे पहले। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट अगर आप देखते हैं तो वो यूनिट कह रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कि ऊपर मोल्स रखेंगे, नीचे रखेंगे वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ सकती है। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसके मोल्स ऑलरेडी वी हैव व्हिच इज 0.0005। और वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो वॉल्यूम इनिशियली उसने हमें बताया था 25 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इस 25 सेंटीमीटर क्यूब को आपको करना पड़ेगा डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, सो इट वुड बी 25/1000। तो जरा चेक करें कितनी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, इट वुड बी 0.02. 0.02। अब यू कैन सी दिस इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड दे वांट कि आप इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो देखो मोल से ग्राम्स में जाने के लिए आप एमआर से मल्टीप्लाई कराते हो, सिंपल, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज, अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन हो कौन सी वाली, मोल पर डेसीमीटर क्यूब वाली, और आप चाहते हैं कि आप इसमें कन्वर्ट कर दें किसमें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, तो द ओनली थिंग जो कि आपको इसमें करनी होगी वो क्या करनी होगी, आपको एमआर से मल्टीप्लाई कराना होगा ताकि ये मोल इनटू एमआर मास में कन्वर्ट हो जाए, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर यू हैव, 0.02, just multiply it with the MR of calcium hydroxide which is 74. What you will see that it will have 1.48 grams per decimeter. All right बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपके पास कन्वर्जन है, ये चीज आपको लाजमी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्स का यही पैटर्न है, इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप अगर स्टेशियोमेट्री करने की बात करें तो सबसे पहले आप मोल्स निकाल लीजिए, उसके बाद स्टेशियोमेट्रिक रिलेशन लगा के आप किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल्स निकाल लीजिए जिसकी वॉल्यूम, मास, कॉन्सेंट्रेशन आपको रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद आपको जो चाहिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, Right, sir. चलिए तो आगे चलते हैं। तो here we have another question number which is you can say that transition elements are found in the middle block of the periodic table. Chromium has several isotopes, manganese has only one isotope. State what is mean by the term isotopes. क्या होता है isotopes बच्चों? Atoms of same element with same number of proton but different number of neutrons. Yes, you need to keep remember, यहाँ आपने atoms लिखना है, isomer वाले definition जरा compounds मत लिख देना यहाँ पर बच्चों। Atoms of the same element, atoms of same element, एक ही जैसे element के atoms होते हैं। They have what? They have same number of protons but different number of neutrons. Having same number of protons but different number of neutrons. Right, बच्चों? That is the nucleon number of manganese. Manganese का nucleon number 55. 55. Okay, you can see the periodic table for this, or 55, absolutely right. उसके बाद complete the table to show the number of protons, neutrons and electrons in chromium 3+ ion. So what are the protons over here? 24. 24. And what about the neutrons? 52 minus 24? 28. 28. Yes, 52 minus. सही है. And what about the electrons? It is 3+. 21. यानी कि 24 minus 3 give you 21. Absolutely right बच्चों. चलें अब देखें यहाँ पर आप ये सवाल देख सकते हैं which is the new addition in our syllabus, or you can say that कि भाई presence of water का जो है टेस्ट है आपके पास, तो जरा जल्दी से बता दीजिए। Only chemical property of transition metal is that they form colored compounds. Give the color of the following hydrated salt.
हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा? ब्लू यस, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद ये हो जाएगा ब्लू। एंड हाइड्रेटेड कोबाल्ट फ्लोराइड पेपर का बच्चों पिंक Pink. इट वुड बी पिंक। यस, दिस इज द न्यू एडिशन, यू नीड टू कीप रिमेंबर। ये इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देन स्टेट टू अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी, एक तो उसने बता दी वन केमिकल प्रॉपर्टी की ट्रांजिशन कलर Variable कंपाउंड्स बनाते oxidation हैं। speed. यस, सेकंड and इज act as a वेरिएबल। catalyst. यस, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। वेरी गुड बच्चों, ये हो गई दो केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मत लिख दीजिएगा, लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हार्ड होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये नहीं लिखनी है। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस रखना है। वेरी गुड। Transition elements and group 1 elements are metals. They share many physical properties, including the ability to conduct electricity and the hammer into shapes. Explain why transition elements and group 1 elements conduct electricity. Metals electricity Because of conduct क्यों करते हैं zero बच्चों? Zero charge electrons. electrons. Yes, you can say that they have mobile electrons. So you can say that metals have mobile electrons. Metals have mobile electrons, or you can say that delocalized electrons. Right बच्चों? याद रखिएगा, यहाँ पर आइंस मत लिख दीजिएगा, ये बड़ा कांस्टेंट सवाल है, पेपर में आता ही आता है। और वो आपको पूछने के लिए आता है कि भाई आपको पता भी है कि ये कंपाउंड किससे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और मेटल्स या एलिमेंट किससे करते हैं, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए यहाँ, आंसर आइंस नहीं लिखना है आपने। Next is state a property that describe a material which can be hammered into shapes. क्या बोलते हैं? Malleability. Yes, you can say that the elements are known as malleable, that can be converted into different shapes. Very good, bachcho. Transition elements and group 1 elements differ in other physical properties. Transition elements are harder and stronger than group 1 elements. Describe two other ways in which the physical properties of transition elements differ from group 1 elements. Higher melting and boiling point and higher Yes, density. you can say that higher density and Higher boiling point. Higher boiling point. वेरी गुड, ये मैंने खुद ही बता दिया आपको थोड़ी देर पहले, और मुझे नहीं पता था नीचे वो सवाल पूछने वाला है इस बारे में, बट द क्वेश्चन इज वेरी गुड, परफेक्ट क्वेश्चन है माशाल्लाह से। चलें नेक्स्ट चलते हैं। चलें भाई, आईजीसीएसई वाले बच्चों जरा याद रखिएगा कि मैं आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। तो पहले तो मैंने आपको मोल्स को डिक्लेयर किया है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, तो आप सबसे पहले मोल्स की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। हर एक एयर में आपको इस तरह का एक सवाल मिलेगा, वो सॉल्व करें, आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बड़ा सिंपल पैटर्न है, मोल्स निकालें, रिलेशन निकालें, कॉन्सेंट्रेशन निकालें, मोल्स निकालें, रिलेशन निकालें, वॉल्यूम निकालें, मोल्स निकालें, रिलेशन निकालें, मास निकालें। बड़ा सिंपल है, आप इसको प्रैक्टिस करें, यू वुड बी वेरी स्मार्ट इन दिस। आफ्टर दैट periodic table is very important for you, तो periodic table का सवाल आपको बहुत मिलने वाला है, उसकी प्रैक्टिस करें। और उसके बाद जब आप फारिग हो जाएं तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग को बड़े स्मार्टली देखिए। तो ये तीन टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें टॉपिक को, ये पेपर में लाजमी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चले आ जाते हैं यहाँ पर। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर हैलोजन, सजेस्ट द अपीयरेंस ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की अपीयरेंस कैसी होती है? पेल येलो गैस। This is pale yellow gas, light yellow gas, right? ठीक है ना। Fluorine reacts with sulfur to compound which is having 25.2% sulfur by mass and a relative molecular mass of 254. अब देखें वो कह रहा है fluorine reacts with sulfur to form a compound has a 25% of sulfur. अब उसने हमें ऑलरेडी बता दिया कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि सल्फर और फ्लोरीन से बना है, जिसके अंदर आपके पास 25.2% सल्फर है। तो भाई बच्चों बाकी कितना होगा आपके पास? 74.8% फ्लोरीन होगा। अब इनके एटॉमिक मासेस से आप डिवाइड कराएं, इट इज 32 एंड इट इज 19। जरा मुझे बताइए क्या आंसर होगा बच्चों? 0.78 0.78 दोनों में यही आंसर आ रहा है। नहीं, दूसरे का है 3.93। ठीक है, दूसरों का आ रहा है आपके पास 3.92 या 93, जो भी आ रहा है आपके पास। उसके बाद आप इसमें स्मॉलेस्ट वाले से डिवाइड करा दें दोनों को, तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है? यू कैन सी दिस, इट इज 1 एंड इट इज 4 और 5, so it means the formula would be SF5, right? No sir. Right, sir. अच्छा आप देखें, सॉरी, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है आपके पास, तो ये तो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, SF5 आपके पास आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है आपसे, इसने आपको क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, तो फैक्टर निकालेंगे।
फैक्टर कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज 254 राइट नाउ एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास 32 प्लस 19 into 5 कितना बनता है बच्चों? ये 127। 127। तो इसको डिवाइड कराएं, फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला इनटू फैक्टर व्हिच इज 2 राइट नाउ। तो आप S2F10 S2F10 एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट, बट ये नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये लाजमी पूछते हैं भाई, ये चीज आपको जो है ना इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत हर पेपर में आपको ये डायग्राम नजर आएगी। तो वी नो दैट नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड ईच क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज 1, तो एक शेयर कर लेंगे, 6 वुड बी आउटसाइड। एक शेयर कर लेंगे, 6 वुड बी आउटसाइड। एक शेयर कर लेंगे, 6 वुड बी आउटसाइड। राइट बच्चों? राइट सर। राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास ये देखें, आयोनिक बॉन्डिंग भी आ गया। अब वो आपसे पूछ रहा है लिथियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड कंप्लीट विद डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट एंड द चार्जेस ऑफ द आयंस इन लिथियम एंड क्लोराइड। सो भाई लिथियम जब एक अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इट बिकम व्हाट? 1 प्लस, और इसका एक ही शेल बचेगा जिसके अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। और सॉरी, क्योंकि इन्होंने क्लोरीन को डॉट दिया हुआ तो हम इसको क्रॉस दे देते हैं। ठीक है भाई। और फिर अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के अंदर आपके पास क्योंकि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होंगे, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से इसने लिया होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -1। राइट बच्चों? राइट सर। यस सर। चलें, देन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस between the particles while lithium chloride is a solid at room temperature and pressure but NCl3 is a liquid। देखिए वही सवाल है जिसके हम काफी प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं। राइट बच्चों? तो बस आपने उसी पैटर्न पे लिखना है जो कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है भाई। आप सबसे पहले लिखेंगे लिथियम क्लोराइड इज अ जाइंट आयोनिक लैटिस। लिथियम क्लोराइड इज अ जाइंट आयोनिक लैटिस with strong ionic bonding, या आप यहाँ लिख सकते हैं for suppose with strong electrostatic force of attraction between the ions, while NCl3 is a simple molecular structure, with weak intermolecular forces, right बच्चों? That is why it requires lesser energy to overcome. NCl3 के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे that is why it requires lesser energy to overcome। और अगर आप इसके बारे में लिखना है लिथियम क्लोराइड के बारे में तो आप लिख सकते हैं that is why it requires a greater energy to overcome। All right बच्चों? Yes sir। Right। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है the reaction scheme shows 5 organic reactions numbered 1 to 5। नेम रिएक्शन नंबर 1। देखिए शुगर से इट्स सिंपल फर्मेंटेशन। आपके पास शुगर से जब अल्कोहल बनती है तो वो आपके पास फर्मेंटेशन रिएक्शन कहलाता है। सही है भाई बच्चों? नेक्स्ट इज नेम द रिएक्शन 2 एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। रिएक्शन नंबर 2 को देखें, इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपके पास कंबस्शन है, आग लग रही है यहाँ पर। और इसकी जब इक्वेशन आप लिखेंगे तो भाई इथेनॉल इट्स C2H5OH। जब ये बर्न होता है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और एलिमेंट्स इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। बैलेंसिंग के लिए पहले कार्बन को बैलेंस कर लें, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। राइट? Yes sir। And after that 5C1 is saying reaction 3 forms ethanol from alkenes। Identify alkene A। अच्छा भाई अल्कीन से आपके पास इथेनॉल बनता है। तो आप जरा देखिए आपके पास इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं तो अल्कीन में भी डेफिनेटली 2 ही कार्बन होंगे। फिर so you can say that it should be ethene। 2 कार्बन वाला अल्कीन 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना सकता है। State the type of reaction that occur during addition reaction। This is addition reaction, or you can even say that hydration as well। और अगर आप बात करें state the reagent and conditions needed for reaction 3 तो सबसे important चीज इसके अंदर जरूरत है steam। और साथ साथ आपको चाहिए होगा यहाँ पर कैटलिस्ट, immobilized phosphorus, concentrated phosphoric acid। phosphoric acid भी आप लिख देंगे तो चलेगा, जरूरी नहीं concentrated या dilute लिखें। साथ साथ 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है भाई, प्लस 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऑलराइट बच्चों? Yes sir। Yes sir।
उसके बाद ये कह रहे हैं अल्कीन A is converted into अल्कीन B in reaction 4. ये अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है. स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन 4. अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप एडिशन रिएक्शन करते हो. You can say that hydrogen plus catalyst आप यूज करते हो निकल कैटलिस्ट और साथ में आप टेम्परेचर यूज करते हो at 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. Right, then they are saying state the general formula of alkanes बच्चों. So it definitely CN H2N. सर ये रिएक्शन क्या कहलाएगा एल्कीन टू एल्केन? ये एडिशन रिएक्शन है. ओके ठीक है, तो ये हो गया आपके पास. उसके बाद ये कह रहा है इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन रिएक्शन 5 बाय हीटिंग इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वन अदर रिएजेंट इज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने इसमें यूज करना होता है पोटेशियम मैंगनेट. पोटेशियम मैंगनेट 7. ये ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी लिखिए क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है. देन नेम द होमोलोगस सीरीज कंपाउंड सी बिलोंग्स. कंपाउंड सी कौन सा है भाई? कंपाउंड सी इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही है तो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. सो इट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए भाई ये. उसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सी. और डेफिनेटली आपके पास क्योंकि ये 2 कार्बन वाला इथेनॉल था तो कम जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ऑल बॉन्ड्स और एटम्स का मतलब है आपने डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है. सो दिस वुड बी इथेनोइक एसिड. ऑलराइट बच्चों. Right, sir. Yes, sir. यस सर. And when you are moving towards question number 6, बच्चों, this is the 4th most important topic for IGCSE students. 4th important. आपको हर पेपर में पॉलीमराइजेशन लाजमी मिलेगा तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 50 to 60% पेपर आप अपना प्रैक्टिस कर चुके होंगे. फिर बाकी चीजें जो बच्चे आप आराम से कर सकते हैं उनको, जैसे रिडॉक्स, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह. लेकिन ये 4 टॉपिक सबसे पहले उठाइए. ठीक है, let's move on. The question is about polymers. Polymer X is a condensation polymer. Part of the structure of polymer X is shown. How many molecules of water are going to be produced when this part of polymer X is formed from its monomer? देखिए जरा, 1 2 3. अगर आपके पास 3 टोटल एस्टर लिंकेजेस मौजूद हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बने होंगे. ऑलराइट बच्चों. Yes, Yes, sir. sir, right. And then they are asking for complete the structure of 2 monomers used to make polymer X. Show all the atoms and all the bonds in the functional group. याद रखें डिस्प्ले फार्मूला बनाना है. तो आप ब्लैक वाले को देखेंगे तो ब्लैक वाले के दोनों तरफ क्या चीज मौजूद है बच्चों? O. ठीक है ना. और जबकि आप देखेंगे कि इसको अगर व्हाइट वाले को तो कलरलेस वाले को तो इसके दोनों तरफ आपके पास क्या चीज मौजूद है? C डबल बॉन्ड O. तो ये दोनों चीजें आपको बता रही हैं कि कलरलेस वाले के दोनों तरफ क्या होगा? C डबल बॉन्ड O. और कलर्ड वाले के दोनों तरफ क्या होगा? O. So we know that जब भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH प्रोवाइड करता है तो आपने इस तरह OH के सारे बॉन्ड्स दिखाने. और जो अल्कोहल होता है वो अपना सिर्फ H प्रोवाइड करता है. So you can draw it like this. Alright बच्चों. Yes, sir. यस सर. Then what type of condensation polymerization is X? ये पॉलीएस्टर है या पॉलीएमाइड है? So you can say that this Polyester. ये पॉलीएस्टर. ठीक है. Then part of the polymer Y has the structure shown. State the number of different types of monomers needed to make polymer Y. ये बोलता है कि कितने आपके पास जो है मोनोमर्स की जरूरत होगी. अब देखो इसको आसान तरीके से आप इस तरह पहचान सकते हो कि अगर जैसे अगर आपने ऊपर देखा है कि एक कलर की तरफ दोनों तरफ एक जैसे थे, आप यहाँ देखें इसके दोनों तरफ अलग अलग है. एक तरफ C डबल बॉन्ड O है और एक तरफ O है. तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये ऐसा एक पॉलीमर है जो कि एक ही मोनोमर से बना होगा. और एक मोनोमर में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ अल्कोहल होगा या दूसरी तरफ अमाइन भी हो सकता है. सो इट इज 1 मोनोमर होगा. राइट बच्चों. Right, sir. Yes. यस Then over here, part of polymers that has a structure shown, draw and the name of the structure of the monomer which form polymer Z. तो आपने ये यहाँ क्या करना है? आपने सबसे पहले तो निकालना है रिपीटेड यूनिट. यू कैन सी दिस रिपीट यूनिट 2 कार्बन का होता है. आपने रिपीट यूनिट निकाला, रिपीट यूनिट बनाए आप यहाँ पर. शो ऑल द एटम्स एंड बॉन्ड. आपने हर बॉन्ड दिखाना है. तो यहाँ H आ गया. ठीक है ना. यहाँ आपके पास C आ गया. यहाँ H आ गया. यहाँ क्या आ गया आपके पास? C. और इसके 3 बॉन्ड आप दिखा सकते हैं. पहले तो ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. अब क्योंकि बीच में आप डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये बन गया मोनोमर. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? यू कैन सी दिस इज एक्चुअली 4 कार्बन. So it is but and double bond is in the center, so you can say that but2.
right? Name the chemical process used to make the monomers that form polymers. that कौन सा process Cracking. है ये जो कि Cracking. आपके पास कह रहे हैं ये मोनोमर बनाने के काम आएगा? और ये मोनोमर कैसे बनाएंगे? Name the chemical process used to make the monomer of this. So you can say that cracking. Cracking से हमेशा आपके पास क्या बनता है? अल्कीन बनता है, right बच्चों? Right, sir. Right, sir. Yes. सर जी बेटे, सर इसका ये लास्ट वाले में नेम कैसे दिया आपने? बेटा नेम हमने इस तरह दिया। आपके पास टोटल कितने कार्बन है आपको सबसे पहले ये देखना है। टोटल कार्बन है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है ना? और जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो है सेकंड कार्बन पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटीन है ये, और डबल बॉन्ड आपके पास सेकंड कार्बन पे, तो ये बन गया ब्यू2E। सही है? ठीक है बेटे? ओके सर। यस, एनीवन एल्स? कोई सवाल, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, सो एवरी वन ऑफ यू आप देख सकते हैं कि आईजीसीएसई के पेपर्स कितने